Yes, चलो. Urvashi Sir, wanted this yesterday part. nothing हाँ, बोलो. happened in the class. No. I just Sir, actually practiced my exams 5, were 6 going of on, them. so I was unable to join. Are they over or yet going on? Yes, Still sir, going today was on? the last one. Okay. How was that? Which Sir, is your it was school? good. Which A is your daily school? public school. Oh, DPS you are. Great. चलो बच्चों. Shall we continue? Morphology of cockroach we are done with. That is head, abdomen, thorax. That is done already. I hope you all remember. Little bit about abdomen I told yesterday. You people already know about that abdomen, by the way. But still, I'll tell for you people. क्या याद है आप लोगों को बताओ? Abdomen of cockroach. Abdomen of cockroach we are dealing now. So you all are aware about this. Number of segments in the abdomen of the cockroach are how many? There are 10 segments. I hope you remember. I have told you about how many total segments are there and all. So the abdomen has 10 segments. If you see the whole body, then basically how is the segmentation in the body बच्चों? जरा बताओ मुझे याद है कि आप लोगों को the previous classification what I had given you. One याद करो segment एक in important. head. Good, very good. That is for adults. है ना? एम्ब्रियो में और एडल्ट्स में Yes, अलग sir. अलग सेगमेंटेशन होता है. In embryo, it is 6. Good. Head में there are 6 segments, but in adults they are fused together to form one segment. Continue. After head, thorax. How many segments? Thorax in embryo, it is 3. And in adults as well, it is 3. Good. And finally, abdomen. Now, when you talk about abdomen, then in embryo there are 11 segments, and in adults there are 10 segments. So if you 10. do the total, then this total will be for embryo it will be 20 segments. Okay, and for adults it will be 14 segments. Is this clear, everyone? याद रहेगा ये? Important है बच्चों. Yes, sir. ठीक है, उर्वशी, you understood this? So head we Yes, are done, sir. thorax we are done. Now little bit about abdomen हम लोग पढ़ते हैं. So are you ready for it? Abdomen पढ़ेंगे हम लोग. Abdomen में क्या पढ़ा? कि एम्ब्रियो में होते हैं 11 segments, adults में होते हैं 10 segments. Now again, when you talk about this abdomen, इसमें the whole abdomen is covered by 4 chitinous plates. You all are aware about these 4 chitinous plates. Chitinous. There are 4 chitinous plates. कौन से वाले? वो 4 प्लेट्स होते हैं बच्चों, chitinous plates. उसमें से एक डॉर्सल साइड में होता है, 2 लैटरली होते हैं और एक वेंट्रल साइड में होता है. इनके नाम आप लोग सुने हो ना? हैव यू हर्ड द नेम्स ऑफ दिस प्लेट्स? क्या बोलेंगे इनको हम लोग? डॉर्सल साइड वाला जो प्लेट होता है, इट इज कॉल्ड एज ए टर्जम. रिमेंबर बच्चों? जो लैटरल वाले 2 होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मैं ही पूछूं, मैं ही आंसर दूं क्या? प्लूरॉन्स. और वेंट्रल वाला क्या होता है बच्चों? स्टर्नम. याद आए? ये चीज याद रखनी है आपको. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, उर्वशी? You are understanding this, what I'm saying? The dorsal side of the body of cockroach is called as a tertium, ventral side is called as a sternum, and lateral 2 plates are called as a pleurons. All right. Now, when you say मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, तो यू कैन रिमेंबर जो 7th टर्जम होता है वो तो थोड़ा 7th बड़ा वाला होता है. फीमेल में बड़ा होता है और 9th वाला मेल में. गुड गुड गुड. ठीक है, तो रिमेंबर दैट फीमेल्स में ये जो 7th टर्जम होता है, 7th सेगमेंट,
This is larger and it covers the next two. ये बड़ा होता है और वो अगले 8th और 9th को भी कवर करता है, वो याद रखना है आपको. This you need to remember. Not only that, between 5th and the 6th segment, जो 5वां और 6ठा सेगमेंट होता है बच्चों, उनके बीच में there is stink gland. There is a stink gland, and this stink gland, what it will do? It will release one secretion which will have a dirty odor so that enemies will run away from them. Did you get this? Everybody, please tell me. बोलो जल्दी जल्दी. ठीक है. और जो 10th टर्जम होता है बच्चों, the 10th टर्जम in males या females में भी, 10th टर्जम is now modified into a bifurcated structure. इसी का मॉडिफिकेशन होता है एक बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर में, और उससे ही हम लोग अभी उसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चों एनल सर्काई. एनल सर्कस सिंगुलर नंबर, एनल सर्काई प्लूरल नंबर. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, समझ में आया sir. क्या आपको? तो इसका काम क्या है? हाँ जी, यस. सो इट हैज गॉट Well detected. यप. इसमें कुछ होता है, वो साउंड डिटेक्टिंग ऑर्गन होता है बच्चों. क्या होता है? सर? हाँ, वाइब्रेशंस. तो अब लोग कभी कभी अंधेरे में यू पीपल सी ना कि कॉकरोचेस दे रन अवे इमीडिएटली बिफोर वी रीच टू देम. तो वहां से भाग जाते हैं. क्यों भाग जाते हैं? बिकॉज उन्हें पता चलता है somebody is approaching. तो हाउ डू दे रीच? वो कैसे पहुंच जाते हैं? या हाउ डू दे हाइड? इज बिकॉज उनका ये जो पार्ट होता है, ये जो उनका पार्ट होता है बच्चों, उसी से उन्हें वाइब्रेशंस पता चलता है. ठीक है. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. अब वो दिखता कैसे है वो भी बताता हूँ मैं आप लोग. जस्ट hold on, I'm just searching for the image. देख लो बच्चों, I'll just share image with you people. उसको देख के पहचान लो आप लोग. Watch on your screen, kids. Can you see images? Are you comfortable with that? Please tell. Yes, sir. बोलो बच्चों. ये है मेल और फीमेल कॉकरोच. अब इनमें ये एक चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो, वन कॉमन थिंग यू विल सी इन बोथ. कौन सी वाली चीज? ये. इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कस, एनल सर्कस. कैन यू सी? दिस इज अराइजिंग फ्रॉम द लास्ट सेगमेंट. बोलो Yes, बच्चों, sir. समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो है एनल सर्काई लास्ट सेगमेंट से अराइज हुआ है, दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी. बट अब इसमें यू विल सी, ये वाली फीमेल है, ये वाला मेल है. दिस वाज द डाउट ऑफ ज़ैनब, है ना? ज़ैनब, कैसे पहचानेंगे हम लोग मेल कौन है फीमेल कौन है? तो एक एडिशनल चीज है Yes, बच्चों, sir. उसको हम लोग बोलते हैं एनल स्टाइल. ये देखो, यहाँ से और दो ऐसे चीजें अराइज होती है लाइक दिस. कैन यू सी रेड कलर, या दूसरा कलर बताऊं मैं? यहाँ से देखो बच्चों, दो पार्ट्स और ऐसे अराइज हो रहे हैं जिनको बोलते हैं एनल स्टाइल्स, जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं. याद रखो ये चीज. फीमेल में उसके बदले यहाँ पे देखो कुछ होता है, बोट शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं फीमेल गोनापोफाइसिस. क्या समझा बच्चों? जो लास्ट सेगमेंट होता है फीमेल में, वहां पे एग लेइंग ऑर्गन होगा, जिसको हम लोग ओविपोसिटर भी बोलते हैं. ओविपोसिटर, which is absent in males. Do you understand the difference between male and a female? Tell me बच्चों. Are you comfortable with this? Are you Yes, sir. comfortable with this? सबको समझ में आया?
कैसे पहचानेंगे हम लोग मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच? इट इज बाय एनल स्टाइल। रुको थोड़ा और अगर ढंग का इमेज है तो फिर आई कैन शो यू दैट, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट। हाँ, ये वाला इमेज में देखो बच्चों, एनल स्टाइल या ये एनल सर्कस ये यहाँ पे दे हैव नॉट शोन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बट इट इज ओके। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। हाँ बच्चों, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? प्लीज टेल मी। आ जाओ आगे, चलो। दिस इज क्लियर एवरीबडी? कोई शक किसी को? बोलो जल्दी जल्दी। No, sir, no doubts. ऑल राइट बच्चों, ये बीच बीच में क्यों आ रहा है स्क्रीन पे? शैल वी प्रोसीड नाउ? आगे बढ़े हम लोग। यही चीज थी जो मैंने कल पढ़ाई थी, बस 5 मिनट का एक एडिशनल एब्डोमेन का इंफॉर्मेशन बताया था, बाकी कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, सो शैल वी प्रोसीड नाउ विद द नेक्स्ट थिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच? बताओ बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके Yes, ऊपर sir. 2019 में क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो यू ऑल मस्ट नो अबाउट इट। सो हियर वी गो, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। I'm very good at this dissection of digestive system of cockroach बच्चों, but unfortunately we are stuck. Otherwise आपको ये मैं लाइव दिखा सकता हूँ, all the parts which are there in this। ठीक है, तो अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और वो 2 पार्ट्स में पहला पार्ट होगा उसका एलिमेंटरी कैनाल। द फर्स्ट थिंग इज दिस एलिमेंटरी कैनाल, और जो दूसरा पार्ट होता है उसका सलाइवरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वी कैन कॉल इट एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इतना समझा? हाँ बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये, जब हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स इसके होंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, सबसे पहला फोरगट, द फर्स्ट पार्ट फोरगट, या उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टोमोडियम। स्टोमोडियम, स्टोमा इज ऑलवेज माउथ। मिडगट, ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं मेसेंटेरॉन। अनदर नेम फॉर द सेम इज मेसेंटेरॉन। और जो आखिरी पार्ट होगा बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ तो, बोलो। फोरगट हो गया, मिडगट हो गया, अब क्या होगा? हाइंडगट। पता है कि नहीं आप लोगों को? इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोक्टोडियम। इट इज ओनली कॉल्ड एज ए प्रोक्टोडियम। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी, इतना समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, एस Yes, और sir. नो। ठीक है, अब देखो, ये जो फोरगट है, दिस फोरगट फर्दर कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट्स। फोरगट में क्या क्या आता है? तो सबसे पहली चीज आएगी ये फोरगट में, माउथ एंड माउथ कैविटी। क्या रहेगा अभी सबसे पहला पार्ट इसमें? दैट विल बी बच्चों माउथ एंड माउथ कैविटी, या बकल कैविटी बोल दो। बकल कैविटी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है इसके बारे में। फिर आएगा इसमें फेरिंग्स, हमें भी होता है ना फेरिंग्स। फिर आता है इसके बाद में, दैट विल बी कॉल्ड एज ईसोफेगस। ईसोफेगस। देन देयर इज last part which falls in this is gizzard.
डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी एवरीवन। क्या क्या आता है समझ में है फोरगट में बच्चों? फोरगट मतलब पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और गिजार्ड, 4 चीजें। अब जब हम लोग बोलते हैं मेसेंटेरॉन और मिडगट, तो इसमें भी बच्चों कुछ पार्ट्स आते हैं, अभी याद रखो इसके नाम। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा स्टमक। ठीक है बच्चों, क्या आएगा इसमें अभी? स्टमक। नॉट एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड एज अ स्टमक, बट स्टमक लाइक ट्यूब होगा, और उससे अराइज होने वाली कुछ चीजें जिनको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक सीके। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेपेटिक CAE सीके, सीका सिंगुलर, सीके प्लूरल, हेपेटिक सीके। बस इतनी चीजें आपको याद रखने इसमें। और जो आखिरी पार्ट रहेगा दैट विल बी योर हाइंड गट। So when we say hind gut, that would include the first thing, which is about, उसको हम लोग बोलेंगे माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। आपने सुना होगा ये माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? और बाकी जो पार्ट्स आएंगे इसमें, यू कैन से देर इज इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन लाइक, एंड देन रेक्टम एंड एनस। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, आपको समझ में आया ये वाला पूरा क्लासिफिकेशन? अरे ये काहे बीच में आ रहा है? हाँ बच्चों, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. पूरा क्लासिफिकेशन समझा? और जब हम लोग Yes, ग्लैंड्स sir. बोलेंगे, जब हम लोग ग्लैंड्स बोलेंगे तो उसमें क्या आएगा? सो व्हेन यू से ग्लैंड्स, दैट विल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स ओनली, और कुछ नहीं है इसमें। एक ही ग्लैंड आएगा, दैट वुड बी सलाइवरी ग्लैंड। कंफर्टेबल एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ग्रेट। तो चलो फिर पढ़ते हैं एक एक पार्ट के बारे में इन डिटेल। शैल वी? आर यू रेडी? बोलो बच्चों। हाँ, तो Yes, सबसे sir. पहला पार्ट, इसको ही हम लोग अभी डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम पहले तो कॉकरोच का। ये रहा उसका हेड, ये रहा कंपाउंड आईज, एंड फ्रॉम हियर विल अराइज इट्स माउथ एंड माउथ कैविटी, राइट ना बच्चों? तो जो माउथ एंड माउथ कैविटी है वो यहाँ होगा, इसोफेगस, और यहाँ से अराइज होता है एक बल्ब ब्लैक स्ट्रक्चर। तो हियर यू विल हैव माउथ कैविटी और बकल कैविटी, माउथ कैविटी और buccal cavity. Then this is going to be esophagus. ये है esophagus. Now comes your crop. ये लिखा नहीं ना लिस्ट में हमने बच्चों, इसको ऐड कर दो जरा, ये मिस हो गया। This also you should add in this category. Esophagus के बाद में होता है crop, फिर आएगा gizzard. ओके, ये हो गया crop. Now after crop there is small structure, ये होता है gizzard. This is called as a gizzard. तो ये पूरा पार्ट आपका फोरगट है। Did you get me? Please tell. यहाँ तक समझ में आया क्या आपको बच्चों? बोलो। फिर एक छोटा सा ये ऐसा स्टमक होगा, एंड इसी गिजार्ड के बेस में यू विल सी स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, 18 नंबर, मतलब 4 पेयर्स होंगे ऐसे ये ट्यूब्स के। इसी को बोलते हैं हेपेटिक सीके। व्हाट डू यू कॉल दिस एज? हेपेटिक सीके, जो मिड गट के पार्ट में आते हैं।
देन आफ्टर दिस यही ट्यूब अभी आपका कंटिन्यू होगा, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं मिडगट या मेसेंटेरॉन. व्हाट आर यू कॉलिंग दिस एज? मेसेंटेरॉन. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? और अब यहाँ जहाँ ये मेसेंटेरॉन खत्म हुआ बच्चों, वहां पे होगा इलियम, मतलब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा स्ट्रक्चर, ये इलियम. देन जहां ये इलियम एंड होगा, यहां से शुरू होगा आपका कोलॉन, जिसका डायमीटर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. So this is going to be the colon. Are you understanding बच्चों? और finally this colon will end into rectum and anus. Did you get this? Please tell me. नाम याद रखने आपको. All names whatever I added, उसको याद रखो. चलो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलॉन. ये है रेक्टम, बराबर है ना बच्चों? दिस इज रेक्टम, दिस इज एनस. एम आई क्लियर? और अब जहां पे ये इलियम और कोलॉन जुड़ रहे एक दूसरे के साथ में, वहां पे आपको 150 ऐसे ग्रीन का आई मीन येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. 150 येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स वी कम टू नो. कैन यू सी दिस येलो कलर यहाँ बच्चों? या दूसरा कलर फिलहाल मैं बनाता हूँ. होते येलो कलर के ऐसे 150 थ्रेड्स होते हैं एट द जंक्शन. किसके जंक्शन में बच्चों? ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में. और इसी को हम लोग अभी बोलेंगे मालपीघियन ट्यूब्यूल. Did you get this? Please tell me. All the labels are there. इस लिस्ट वाले देखो बच्चों. बकल कैविटी है, उसमें फेरिंग्स है, इसोफेगस है, क्रॉप है, गिजार्ड है, स्टमक या मेसेंटेरॉन है, हेपेटिक सीके है, मालपीघियन ट्यूब्यूल्स अभी बनाया, इलियम भी है उसमें, कोलोन है, रेक्टम है, एनस है. इज इट देयर? बोलो बच्चों, दिखा क्या? दिखा कि नहीं दिखा बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी. Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल सुन लो एक एक चीज का. So when you start with this mouth cavity और buccal cavity, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं. उसमें biting and chewing type of mouth parts होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने सुना है. Now that will lead into a small aperture. इसको हम लोग बोलते हैं buccal chamber, buccal cavity. अब ये buccal cavity या buccal chamber will open into a common passage, जिसको हम लोग pharynx बोलेंगे. तो यहाँ पे भी आपको दिख नहीं रहा है, पर इसमें pharynx भी प्रेजेंट होएगा. ठीक है बच्चों? बोलो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट विल बी कॉल्ड एज द pharynx. नाउ pharynx विल कंटिन्यू इनटू दिस ट्यूब, जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ है. क्या बोलते हैं हम लोग इस ट्यूब को? इसोफेगस. काम क्या होगा इस इसोफेगस का बच्चों, बताओ तो? इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है विच विल हेल्प इन, किस चीज में मदद करेगा? इट विल हेल्प इन पेरिस्टाल्सिस. अगर आप लोगों ने सुना है ये वर्ड पहले, तो क्या आपने सुना है ये वर्ड पहले कभी? पेरिस्टाल्सिस, बताओ तो. मालूम है कि नहीं पेरिस्टाल्सिस क्या होता है बच्चों? तो सुना है. अरे वो रिदमिक सुना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड बस. रिलैक्सेशन. Yes, sir. Peristalsis is rhythmic contraction and relaxation of muscles so that food can move forward through this esophagus. यहाँ पे मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स, ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो ये जो फूड है ये आगे आगे पुश हो जाता है. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. समझ में आया? तो इसमें इसोफेगस मदद करेगा, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है उसमें. अब वो फूड जाएगा एक ट्रांसपेरेंट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, नाम है क्रॉप. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? क्रॉप. क्या फीचर्स है इस क्रॉप के? इट्स अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट होता है, और यही अभी कंटिन्यू होगा इनटू वन
ये शेप कैसा बोलेंगे हम लोग? दिस इज अ शेप लुकिंग लाइक अ पेयर, और यू ऑल्सो कैन से एक कैश्यू नट के जैसा शेप होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग गिजार्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब कॉकरोच में जो सॉलिड फूड होता है वो कैसे खाएगा ये? हाउ इट विल ब्रेक दैट फूड? तो वो फूड इसके अंदर ब्रेक होता है, गिजार्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, गिजार्ड के अंदर वो फूड ब्रेक करता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं इसके दांत। तो कॉकरोच हैज टीथ प्रेजेंट इनसाइड गिजार्ड। इसका अगर हम लोग सेक्शन लेके देखेंगे बच्चों, इफ यू टेक अ सेक्शन, हमें दिखेगा कुछ ऐसे सर्क्यूलर मसल्स। क्या दिखता है गिजार्ड के सेक्शन में बच्चों? अपने को ऐसे सर्क्यूलर मसल्स दिखते हैं, और इनके साथ में इसके होते हैं 6 दांत। इट हैज गॉट 6 teeth which are supported by these muscles. 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे उसके दांत होंगे बच्चों, 6 दांत, पॉइंटेड टीथ, जो फूड को यहाँ पे ग्राइंड करेंगे, फूड को यहाँ पे क्रश करेंगे। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल मी, क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा मेरे को, समझा? ये होते हैं काइटिनस टीथ। ठीक है, दीज आर 6 काइटिनस टीथ विच आर प्रेजेंट इनसाइड, और ये रहे उसके सर्क्यूलर मसल्स। These are circular muscles. These are chitinous teeth. Am I clear with this? Please tell me. समझ में आया बच्चों? बोलो। तो ये क्रश करेगा फूड को यहाँ पे। The food is crushed inside this. All right? Is this clear? थोड़ा ढंग का इमेज अगर आपको देखना है तो मैं, मतलब ये वाला रफ इमेज है जो मैंने बनाया है, आप लोग ओरिजिनल वाला इमेज देख लो। Wanna see that? हाँ बच्चों, it would be like this. Check on your screen. Here goes the structure. Can you see here बच्चों? जो इमेज मैंने बनाया था वो थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं था, ये वाला देख लो आप लोग। ये रहे सर्कुलर मसल्स, कैन यू सी? ये रहे उसके 6 दांत, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इवन दिस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स। यहाँ पे एक ग्रूव से सपोर्टेड होते हैं। तो ये रियल डायग्राम है। द वन आई मेड वाज एक्चुअली फॉर अंडरस्टैंडिंग। कंफर्टेबल एवरीवन? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, सबको समझ में आया क्या? यस चिल्ड्रन, यू ओके विद दिस? अब उसके बाजू में क्या है? क्रॉप के बाजू में बताओ मुझे, व्हाट इज देयर नियर दिस क्रॉप? ये वाले छोटे छोटे ब्लाइंड ट्यूब्स है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक सीके। और ये हेपेटिक सीके क्या करेंगे बच्चों? दिस हेपेटिक सीके विल पोर गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोरगट। फोरगट में सिर्फ अपने को यही याद रखना है, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। बस बाकी का जो पार्ट है बच्चों वो यहाँ नहीं आएगा। दैट विल बी इन द मिड गट और इनटू मेसेंटेरॉन। अब एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ पे, ये जो पूरा फोरगट है ये कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है? तो याद रखो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। फिर जो मिड गट है वो एंडोडर्म से बना है। दिस मिड गट इज डिराइव्ड फ्रॉम दोनों, अभी दिस वन एंडोडर्म से ये डिराइव्ड है, और जो बचा हुआ आखिरी पार्ट है ये भी वापस एक्टोडर्म से ही बनता है। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये इसका ओरिजिन है या डेरिवेटिव्स है। अब अपन लोग पढ़ते हैं मिड गट। आर यू रेडी फॉर मिड गट? बताओ बच्चों, बोलो, आर यू रेडी? So when we say midgut is nothing but what? Those two things, hepatic caeca and mesenteron, ये चीज है 1 and 2।
तो अब ये गिजार्ड ओपन होगा इसमें एक ट्यूब में, जिसको हम लोग मेसेंटेरॉन बोलते हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको स्टमक बोल सकते हैं, बट स्टमक इज नॉट एक्चुअली द रियल नेम, तो आप मेसेंटेरॉन ही याद रखो इसको। एंड ऑन ईदर साइड ऑफ दिस, इसके दोनों साइड से या ऑल साइड से क्राउन के जैसे ओपन होते हैं आपके हेपेटिक सीके। व्हाट डू दे डू? हेपेटिक सीके का काम क्या होता है बच्चों? दे रिलीज डाइजेस्टिव जूस। क्या करते हैं हेपेटिक सीके बच्चों? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। सो दैट मच ओनली यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट मिड गट। कोई शक किसी को? बोलो बच्चों, एनीबडी गॉट एनी डाउट? टेल मी so far. Anybody got any doubt? Please tell me. All are comfortable? Bhumi, you okay with this? MK बताओ, मोहम्मद समझ में आया बच्चा? और अब आ जाओ आखिरी पार्ट जो है आपका हाइंड गट। हाइंड गट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं हमने पढ़ा। हाइंड गट बोला तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, फिर ये कोलोन, इलियम, रेक्टम, एनस। So let us see about this now. तो जब हम लोग बोलेंगे इलियम, तो इलियम थोड़ा पतला होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा होता है, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा वो इसी के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, इट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इवन ये जो मेसेंटेरॉन है, यहाँ से भी फूड एब्जॉर्ब होता है बच्चों, याद रखो। सिर्फ स्टोरेज का काम क्रॉप करता है, क्रॉप हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, बाकी कोई भी स्टोरेज में काम नहीं करेगा। ये सब हो चुका है, तो आई एम जस्ट रिमूविंग दीज लेबल्स सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आगे। इलियम के बारे में क्या बोला मैंने? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। फिर इलियम के बाद में आ जाओ माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। याद रखो, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। नाउ व्हाट आर दे? आई सेड ऑलरेडी, 150 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। Actually they look yellow in color when you do the dissection and see which open or they carry। अभी यहाँ जो आजू बाजू में जो स्पेस है बच्चों, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं हीमोसील। ओके, फिल्ड विद ब्लड, हीमोलिम्फ। और यहाँ पे होता है कॉकरोच का वेस्ट। कौन सा वेस्ट होता है कॉकरोच का? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इधर जो वेस्ट है प्रेजेंट बच्चों कॉकरोच का, ये होता है यूरिक एसिड, सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस। तो ये कलेक्ट करते हैं इस यूरिक एसिड को, एंड देन दे पोर इट इनटू दिस लार्ज, ये वाला जो जहाँ पे ये ओपन हो रहा है वहां पे वो रिलीज कर देंगे, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल बी कैरिड फर्दर, एंड देन इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? समझ में आया क्या? बताओ तो, बोलो। कोलोन ब्रॉड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका टर्मिनल पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। द ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस। एनस के अंदर, ठीक है, या इस रेक्टम के अंदर फोल्ड्स होते हैं जो वाटर को रिटेन करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। दैट आल्सो यू कैन रिमेम्बर अबाउट। और ये एनस ओपन होगा सेगमेंट नंबर 10 में। तो एनस विल ओपन इनटू 10th सेगमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? एवरीबडी प्लीज टेल। क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हो? बोलो बच्चों, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हो? बोलो बच्चों। तो ये कॉकरोच क्या खाता है? द फूड व्हाट दिस कॉकरोच फीड्स अपॉन, ये ओमनीवोरस होता है, सब कुछ खाता है, वेजिटेरियन फूड भी और नॉन वेजिटेरियन फूड भी। एक्चुअली हमारा फूड भी खाता है और हाँ, उससे ब्रेड खाता छोटे है, इंसेक्ट्स को भी खाता है। ग्रेन्स खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, वो खुद को भी खाता है, इसलिए हम लोग इसको कैनिबल बोलते हैं ना बच्चों। इट इज ओमनीवोरस। यस, ठीक है, और अब बचा हुआ लास्ट छोटे पार्ट। इंसेक्ट्स को भी खाता है ना? हाँ हाँ खाता है, यस। इट फीड्स अपॉन डेड इंसेक्ट्स, कैडावर्स को खाता है। कैडावर्स मतलब डेड इंसेक्ट्स, डेड बॉडीज को। अब एक चीज और बची इसमें, हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, चलो उसको पढ़ते हैं। आर यू रेडी बच्चों? सलाइवरी यस सर। ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच, सुन लो अब इसके बारे में।
तो salivary glands of cockroach includes, चलो आपको पहले मैं इमेज दिखाता हूँ कैसा होता है ये इमेज, फिर आप लोग उसका स्ट्रक्चर पढ़ लो। हियर वी गो बच्चों, कॉकरोच का सलाइवरी ग्लैंड है आपके सामने, कलरफुल इमेज देख रहे हो आप लोग? बताओ मुझे, या इसको थोड़ा जूम इन करके पढ़ना है आपको, बताओ। Do you want to learn this in a zoom in view? यहाँ देखो बच्चों, देखो इधर, ठीक है, दिख रहा है बच्चों? कैन यू ऑल सी? थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं इसको। इज इट कंफर्टेबल? आर यू ओके? प्लीज टेल। हेलो किड्स, ओपन योर माउथ, टेल मी। एक ही मिनट, 1 मिनट से कम टाइम बचा है, आप लोगों को वापस आना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। मीटिंग इज अबाउट टू एंड। आ जाओ वापस बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करें।